آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں ویلکم کہتا ہوں۔ آئیے خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا، اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے 7ویں آیت تک۔ یہاں لکھا ہے، افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغدانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نگلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ خدا کے پاک کلام کے بڑھے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ آئیے بیٹھے۔ کافی دنوں سے ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے خدا کا کلام سن رہے ہیں، اور آپ کو یقیناً اس سے برکت مل رہی ہے۔ آج کا پیغام جو میں نے ابھی پڑھا ہے آپ کے سامنے چاہتا یاد، مجھے لگتا ہے کہ یہ میں آج مکمل نہیں کر سکوں گا، تو کرسمس کے بعد یہی جو آیات آج پڑھی گئی ہیں انہیں دوبارہ پڑھ کے انہی میں سے خدا کا کلام ہوگا کرسمس کے بعد اگلے سنڈے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج یہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ تو تھوڑا سا میں پچھلے اتوار کے پیغام کو دہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ گزشتہ سے اگر میں آج کے پیغام کو ویوستھا نہ کروں تو کچھ ادھورا پن رہ جائے گا۔ پچھلے اتوار ہم نے سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح 7 کلیسیاؤں کے درمیان میں ہے، 7 چراغدان 7 کلیسیاں ہیں، اور مسیح جو ہے وہ کلیسیا کا جو سر ہے، ہیڈ ہے، وہ درمیان میں ہے، اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ یہ چراغدان تو 7 کلیسیاں ہیں، اور جو ہاتھ میں 7 ستارے ہیں یہ کلیسیاؤں کے پاسبان ہیں۔ اور پچھلے اتوار میں نے آپ کو بتایا کہ کلیسیا کا مطلب کیا ہے۔ کلیسیا، میں ریپیٹ کروں گا، کلیسیا ایک گریک ورڈ یونانی لفظ ایکلیسیا سے نکلا ہے، اور یہی لفظ چلتے چلتے اردو میں کلیسیا اور انگلش میں چرچ، اس کا مطلب ہے ایمانداروں کی جماعت، یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے لوگوں کا گروہ، چنے ہوئے لوگوں کی اسمبلی، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ وہ جنہیں علیحدہ کیا گیا، سیپریٹڈ ون، جن کو علیحدہ کیا گیا اور جو علیحدہ ہو کے پرستش کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ان کی ایک جماعت۔ اور پھر میں نے بتایا، میں آج سارا پیغام پچھلے سنڈے کا ریپیٹ نہیں کروں گا، تو غور سے سنیے۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ کلیسیا میں مقامی کلیسیا بھی ہوتی ہے اور یونیورسل بھی۔ مقامی کلیسیا کسی ایک گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی محلے میں، کسی کالونی میں، وہ ان لوگوں کی جماعت جو یسوع کے خون سے دھلے ہیں، جو نجات یافتہ ہیں، اور اکٹھے مل کے ایک جگہ پہ پرستش کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں مقامی کلیسیا یا لوکل چرچ، جیسے گڈ نیوز چرچ۔
میں نے صرف ایک نام لیا ہے، بے شمار نام ہے۔ اب یہ جو جتنے لوکل چرچز ہیں یا مقامی کلیسیائیں ہیں، جیسے کہ گڈ نیوز چرچ باہر کالونی، ایسے دنیا بھر کے مختلف قصبوں میں، شہروں میں، گلی محلوں میں ایک ہی سڑک پہ 10-10 20-20 چرچ۔ نیو یارک میں نے دیکھا اولڈ سٹی میں ایک ہی اسٹریٹ پر 15-15 کلیسیائیں ہیں، شاید اس سے زیادہ بھی۔ تو جتنے کلیسیائیں جہاں بھی واقع ہے جو یسوع مسیح سے خون سے دھلے ہوئے لوگوں کا گروہ ہے، ان سب کو ملا کر کہتے ہیں یونیورسل چرچ یا عالمگیر کلیسیا۔ اور میرے پچھلے پیغام کا آخری حصہ، جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو وہ لوگ جو مسیح میں سو گئے ہیں، ایماندار جو کلیسیاؤں میں سے مر گئے ہیں، پہلے وہ جی اٹھیں گے۔ اس کا مطلب کلیسیا جی اٹھے گی۔ کلیسیا کہ وہ لوگ جو مر چکے ہیں، سو چکے ہیں، جب یسوع آئے گا پہلے وہ جی اٹھیں گے، اس کا مطلب وہ کلیسیا جی اٹھے گی۔ اور جو اس وقت زندہ ہوں گے کلیسیا، یہ دونوں مل کر ہوا میں خداوند کا استقبال کریں گے اور مسیح کے پاس ہمیشہ رہیں گے۔ تو یسوع مسیح کلیسیا کو لینے آ رہا ہے، کسی ڈینامینیشن کو نہیں۔ میں کسی مشن کا نام نہیں لے رہا، میں مجموعی بات کر رہا ہوں یونیورسل چرچ کی، عالمگیر کلیسیا کی۔ پوری دنیا سے ان تمام جماعتوں میں سے یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو اوپر لے جائے گا۔ میں نے ایک کہانی بہت عرصہ ہوا ایک سنی، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جانے مجھے یاد آ گئی کہ کسی فیکٹری میں کوڑا کرکٹ جمع کیا جاتا تھا پورے شہر کا، اور وہاں ایک بڑی مشین چھت کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ تو ایک دن مینیجر کا دوست کہنے لگا کہ یار مجھے اپنے فیکٹری کی سیر تو کروائیں، اور جو دوست جب فیکٹری میں گیا تو اس نے کہا کہ یہ کیسا آپ کی فیکٹری آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا آئیے، اور وہ اسے اس جگہ لے گیا جہاں گندگی تھی، گند کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، کیونکہ ساری گندگی ایک جگہ پہ جمع ہوتی تھی۔ تو اس نے اپنے ناک پہ رومال رکھا اور کہا وہ مجھے کہاں لے آئے بھائی؟ اس نے کہا انتظار کیجیے۔ اس نے سوئچ آن کی، اوپر سے ایک مشین جو چھت کے ساتھ لگی تھی وہ نیچے آئی، اور اس مشین کے ساتھ مقناطیس لگے ہوئے تھے، میگنیٹس، اور اس مشین نے اس گند میں سے، اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں سے چن چن کر لوہا جو ہے وہ اپنے ساتھ چمکا لیا۔ اور جیسے ہی لوہا چمک گیا، اس نے دوبارہ سوئچ آن کی، مشین اوپر اٹھ گئی اور لوہا اوپر چلا گیا۔ اس نے کہا ہم یہ کرتے ہیں، ہم کوڑے کرکٹ میں سے لوہا چنتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ریسائکلنگ کرتے ہیں۔ تو سنیے، جب یسوع مسیح آئے گا وہ کوڑا کرکٹ میں سے، گندگی کے ڈھیر میں سے، گنہگاروں میں سے، بدکرداروں میں سے اپنی کلیسیا کو ایسے ہی اٹھا کے لے جائے۔ ہاللیلویا، سب بولے ہاللیلویا، یسوع مسیح کی تعریف ہو جائے۔ تو کلیسیا کو اٹھا کے لے جائے گا۔ میں نام نہیں لے رہا کس کلیسیا کو، کلیسیا کو۔ تو آج 7 کلیسیائیں جن کو یہ خط لکھا گیا، مکاشفہ کی کتاب لکھی گئی، ان میں سے پہلی کلیسیا کا نام ہے افسس کی کلیسیا۔ بولیے، آپ نے افسس کا نام پہلے سنا ہے؟ آپ کو یاد ہے جب میں پولس رسول کے خطوں میں سے، پولس رسول کے سفروں میں سے بیان کر رہا تھا ایمان کی کتاب میں سے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا پولس کا دوسرا سفر، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولس کے دوسرے سفر کے دوران جب پولس افسس میں گیا تو وہاں جادوگروں نے اپنی جادوگری کی کتابیں جلا دی اور جادوگر مسیح پر ایمان لے آئے۔ آپ کو یاد ہوگا۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ افسس میں ڈیمترس نام ایک دیوی کا بڑا مندر تھا، اور پولس نے وہاں منادی کی اور کلیسیا قائم کی اپنے دوسرے مشنری سفر کے دوران۔ افسس کی بات کر رہا ہوں۔ افسس روما، یعنی روم اس وقت پوری دنیا میں روم کی حکومت تھی، روم کے صوبہ آسیا کا کیپٹل تھا، جو موجودہ ترکی کے علاقے میں پڑتا ہے۔ ایک بڑا شہر تھا، اور یہاں جادوگری کا ہیڈ کوارٹر تھے، بت پرستی کا مرکز تھا، یوں سمجھے دیوی دیوتاؤں کا یہ گڑھ تھا۔ لیکن یہاں پر یہودی بھی رہتے تھے، ان کی ہیکل بھی تھی، کیونکہ ایمان کی کتاب میں جب آپ کو میں اسٹڈی دے رہا تھا تو میں نے کہا کہ پولس جب افسس میں گیا تو ایک ہیکل میں گیا، اور میں نے بتایا کہ ہیکل میں جب اسے منادی کی بہت سے یہودی مسیح پر ایمان لے آئے، تو وہاں
वो फिर बुतपरस्तों के पास भी गया, उसने जादूगरों के पास भी गया और इफिसस में ग्रेट कलीसिया कायम हो गई। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। तो पौलुस ने खुद भी इफिसियों के नाम खत लिखा है, तुम्हारी बाइबल में मौजूद है। आपको याद है पौलुस के 14 खत, उनमें से एक खत इफिसियों के नाम है, वो उसने उसी कलीसिया को लिखा था जो इफिसस में कायम हुई थी। और आज यीशु मसीह भी इफिसस की कलीसिया को खत लिखवा रहा है और यूहन्ना को कहता है, ऐ यूहन्ना, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। इफिसस की मैंने बैकग्राउंड आपको बता दी है कि ये देवी देवताओं का मरकज था, वहां एक और मंदिर भी था, मैंने ध्यान से बताया, एक और भी था, डायना। लोगों को लेडी डायना का नाम बड़ा पसंद आता है। डायना एक देवी का नाम था जिसकी प्रस्तिश होती थी, और उसकी प्रस्तिश यूं समझे, ये अगर खुदा के मुकाबले में किसी की इबादत होती है, खुदा के मुकाबले में किसी की प्रस्तिश होती है, तो ये रूहानी रियाकारी, रूहानी हरामकारी के जुमरे में आती है। लिहाजा इफिसस हरामकारी में पड़ा हुआ था, इफिसस का शहर, क्योंकि वहां डायना की प्रस्तिश होती थी। लेकिन जब खुदा का काम वहां हुआ तो उनको लाले पड़ गए जान के, और वो मुसीबत में पड़ गए, और मुसीबत में ये पड़ गई कि उनको खतरा हो गया कि उनके देवी देवताओं की इज्जत कम हो गई है। और फिर क्या हुआ, पौलुस को वह शहर छोड़ना पड़ा, लेकिन मजबूरी तौर से 2 साल वो मारा। तो इफिसस की कलीसिया के बारे में लिखा है, किसकी तरफ से? उसकी तरफ से जो 7 चिरागदानों के दरमियान में है। आपको याद होगा 7 चिरागदान मैंने बताए थे क्या है, किसको याद हो हाथ खड़ा करें। हाँ जी, 7, हाँ जी, वेरी गुड, 7 कलीसियाएं। वो जो 7 कलीसियाओं के दरमियान में है, दरमियान का मतलब है उसको सारी कलीसियाओं की समझ है, सारी कलीसियाओं के बारे में वो जानता है, एक एक के बारे में उसको फिक्र है। और जिसके हाथ में 7 सितारे हैं, ये 7 सितारे जो है ये 7 कलीसियाओं के पास्टर्स हैं, एंजल्स हैं। तो लिखा वो ये फरमाता है, क्या कहता है, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, क्या लिख, अब सुनिए दोबारा, इफिसस ये मुकाशवा की किताब 2 भाग, वो ये फरमाता है, मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र जानता हूं। तो पहली चंद आयतों में यीशु मसीह ने इफिसस की कलीसिया की खूबियां बयान की हैं। इफिसस की कलीसिया में खूबियां भी थी, अच्छी खूबियां थी, और वो क्या क्या थी? मैं तेरे सब्र को जानता हूं, मैं तेरी मुशक्कत को जानता हूं, तेरे काम को जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तू बदों को देख नहीं सकता। ये खूबियां हैं। इफिसस की कलीसिया में बड़ी खूबियां थी। एक और खूबी आगे जाके लिखी है कि जो लोग अपने आप को रसूल कहते हैं, तूने उनको झूठा पाया और तू उनसे नफरत करता, तूने उनको तर्क किया है, मैं तेरी तारीफ करता हूं। और आगे जाके उसने फिर एक और बात कही, तू नेकियों के काम से नफरत करता है, मैं भी रखता हूं। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह कलीसियाओं की अच्छी चीजें जो है, कलीसियाओं की अच्छी हालत जो है, अच्छी रिपोर्ट जो है, उससे वाकिफ है। आपने पढ़ा होगा, यहां पे लिखा भी यही है, दूसरी बात की दूसरी आयत में, मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र को जानता हूं, जानता हूं, बोलिए जानता हूं, बोले जानता हूं। इसका मतलब है कि आप खुदावंद यीशु मसीह से कुछ भी नहीं छुपा सकते। वो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है। जब यीशु मसीह ने एक अफलूज को शिफा दी, जो 4 आदमी जिसको उठवा के लाए थे, लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे की सरगोशियां कर रहे थे और कह रहे थे ये कौन होता है गुनाह माफ करने वाला। तो यीशु मसीह को अंदर से पता चल गया कि अपने दिलों में क्या सोच रहे हैं। वो सोच रहे थे कि ये कौन है जो गुनाहों को माफ करने का इख्तियार रखता है। यीशु ने कहा, तुम जो सोचते हो, तुम सोचते हो कि गुनाहों का माफ करने का इख्तियार किसके पास है, मैं दिलों को जांचता हूं। तो यीशु मसीह दिलों को जांचता है, हमारे अंदर सोच में जो बात हम सोच रहे होते हैं उसे भी जानता है। और जब वो आम दुनिया की बातों को जानता है तो कलीसिया को क्यों नहीं जानता होगा। जब वो आम दुनिया
کے واقعات کو وہ جانتا ہے تو کلیسیا کو کیوں نہیں جانتا؟ کہتے میں جانتا ہوں تیرے کاموں کو. تو اس کے اچھے کام یہ تھے افسس کے کام کہ وہ کام مشقت کرتے تھے. مشقت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے مزدوری، یہاں مطلب یہ ہے وہ روحیں بچانے کے لیے بڑے تگودو کرتے تھے. روحیں بچانے کے لیے غیر قوموں کو، گنہگاروں کو، بت پرستوں کو مسیح کے پاس لانے کے لیے کام کرتے تھے. تو خداوند نے اس کی تعریف کی کہ میں جانتا ہوں. شاباش. تو خدا نے تعریف کی. اچھا ایک بات میں چھوڑ گیا، تھوڑا سا واپس پیچھے جاؤں گا. وہ لکھا ہے افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھے. کلیسیا کے فرشتے کیا ہیں؟ یہاں اگر آپ صحیح ہیبرو میں اس کے میننگز دیکھیں اور گریک میں جو فرشتہ کا لفظ آیا ہے، اینجل کا لفظ جو گریک میں آیا ہے، اس کا مطلب ہے پیغامبر، میسنجر، میسج دینے والا. تو افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، اس کا مطلب ہے افسس کی کلیسیا کے میسنجر کو، پیغام دینے والے کو، چرچ کے لیڈر کو، چرچ کے پاسبان کو یہ لکھ. تو کہتا ہے میں تیری مشقت کو جانتا ہوں، تم روحیں جیتتے ہو، تم محنت کرتے ہو. جس طرح آج کی کلیسیاں میں آپ کو بتاؤں، میں نے جو اپنی آنکھوں سے کلیسیاں دیکھی ہیں، آئرلینڈ میں نے دیکھا ایک کلیسیا کو، وہ ایک چوک میں مین سڑک پہ، بیلفاسٹ شہر کی بات بتا رہا ہوں، آئرلینڈ میں ایک سڑک کے چوک میں کھڑے ہو کر لاؤڈ سپیکر اپنے ہاتھ میں لے کر اور بڑے بڑے پلے کارڈ اور بینر اپنے ہاتھ میں لے کر میوزک لے کر اور اسکوائر کو ساتھ لے کر خداوند کی پرستش کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں. اور جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. خداوند افسس کی کلیسیا بھی ایسے ہی محنت کر رہی تھی. اور میں نے نیو یارک میں بھی یہ دیکھا، ایک لیڈی کو میں نے سنا، اس کے ہاتھ میں مائک تھا، ایک چرچ ایک سڑک کے کارنر میں وہ کھڑی تھی اور اس کے ساتھ اس کی کلیسیا کے لوگ تھے اور وہ سامنے اور کی طرح صاف صاف کہہ رہی تھی کہ میں ایک جس کو کہتے ہیں کسبی تھی، میں ایک گنہگار عورت تھی، میں ایک ایسی عورت تھی جو کسبی یا پیشہ ور عورت تھی، لیکن آج میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں، میں نے یسوع اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے. اور وہ دعوت دے رہی تھی ان تمام گندوں کو، گناہوں کو، بروں کو، بدکرداروں کو کہہ رہی تھی اگر میں گنہگار نجات پا سکتی تم بھی پا سکتے ہو، یسوع کو قبول کرو. تو افسس کی کلیسیا میں خداوند یہی کچھ ہو رہا تھا. یونگچو کوریا کے ایک بہت بڑے کلیسیا کا پاسٹر، اس نے جب نجات پائی تو کیسے پائی؟ سنیے. ایک لڑکی نے، ایک چھوٹی سی بچی 18 سال کی ہوگی ایک لڑکی، یا اس کی ایج کا مجھے معلوم نہیں ہے، ایک لڑکی نے اسے ایک پامفلٹ دیا تھا، ایک ٹریکٹ، ایک اس کو اردو میں کیا، ایک کتابچہ دیا تھا چند صفحوں کا، اور اسے دیا، اسے کہا انکل پلیز اسے لے جائیں، اگر ٹائم ہو تو اسے پڑھیں، میں آپ کی شکر گزار ہوں گی اگر آپ یہ لے جائیں اور اسے پڑھیں. اور ڈاکٹر یونگچو نے اسے پڑھا، اس میں نجات کا پیغام تھا اور وہ پڑھ کے کرسچن ہو گیا. اور آج دنیا کی سب سے بڑی کلیسیا کے پاسبان ہونے کو اس پر شرف حاصل ہے، جس کے ایلڈروں کی تعداد 22,000 سے زیادہ ہے، جس کے ممبروں کی تعداد لاکھوں میں ہے، ایک لڑکی کی محنت سے. میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں، کلیسیاں محنت کرتی ہیں، گھروں میں جا کر پاسٹر اور ان کے ساتھ کلیسیا کے لوگ گھروں میں جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں آئیے خدا کا کلام سنیں، کروسیڈ کرتے ہیں اور لوگوں سے پرسنل گفتگو کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کے لیے کام کرتے ہیں. یسوع مسیح کہتا ہے میں تیری مشقت سے واقف ہوں. افسس سے کیا کہتا ہے؟ میں تیری مشقت سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں تو مشقت کرتا ہے، تو محنت کرتا ہے، تو لوگوں کو مسیح کے پاس میرے پاس لاتا ہے، نجات کی خوشخبری دیتا ہے اور صبر کرتا ہے اور دکھ سہنے سے تو تھکتا نہیں. سنیں، پولس کو جب انہوں نے ستایا افسس میں، پولس کو وہاں سے بھاگ گیا تھا. میں بھاگ گیا کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا. بات یہ کہ پولس کو بھی وہاں سے جانا پڑا اور خدا کا وقت اتنا ہی تھا کہ وہ وہاں رہتا، کلیسیا قائم کی اور وہ دوسرے اپنے سفر کے مطابق آگے بڑھ گیا. تو کہنے کا مطلب وہاں ان پہ ظلم ہوا. تو افسس کے مسیحوں پر ظلم ہوتا تھا. ایک داستان مجھے یاد آئی افسس کی. میں نے کہا کہ جیسے میرا مضمون سے ادھر ادھر ہونا پڑے گا، اگلے اتوار کے بعد جو اتوار آئے گا نئے سال کے بعد اس میں دوبارہ میں یہ پیغام دوں گا. افسس میں ایک بہت بڑا اسٹیڈیم تھا
कॉलोसियम उसे कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेडियम था, रोम के लोग मसीहों को पकड़ते थे, कैद करते थे और उनसे कहते थे यीशु मसीह का इनकार कर दो, जुल्म करते थे। आज की तरह तो उनके पास शायद क्लाशनकोफ नहीं थी। उनके जो तरीके थे, किसी को पानी के तपते हुए कड़ाह में डाल दिया गया, किसी को मश्क के अंदर सील दिया गया, किसी को खाल के अंदर सील दिया गया, किसी को आले से चीर दिया गया, किसी के बच्चे को उसके मां के सामने जमीन पे पटक दिया गया। मुख्तलिफ तरह की सजाएं वो देते थे कि किसी तरह से मसीह की तालीम देने से बाज आए। इफिसस में ऐसा होता था और वहां एक बड़ा स्टेडियम था, वहां भूखे शेर वो रखते थे, भूखे शेर। जब उन्होंने साल बाद एक मेला लगता था, उस मेले में उन्होंने उन मसीहों को लेके जाना होता था जो कैद में होते थे और जो कहते थे हम लेडी डायना, ये जो देवी डायना है, जो गॉडेस है, और जो वहां के जो देवी देवता और मंदिर है, उनकी प्रस्तुति नहीं करेंगे, हम यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे। वो जेलों में से उनको निकालते और भूखे शेरों के सामने ला देते और सारी जो लोग थे, गुनहगार लोग, जो बुत परस्त थे, रोम के लोग, वो कॉलोसियम ये जो था बहुत बड़ा स्टेडियम, चारों तरफ देखते और जैसे मसीहों को लाकर वो शेरों के सामने डालते, शेर उनके तिक्का मोटी कर देते, उन्हें खा जाते और लोग तालियां बजाते, खुश होते कि मसीहों के साथ ये जुल्म हो रहा है। और यीशु मसीह लिखता है इफिसस की कलीसिया को, मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं, तू सब्र करता है। ये अच्छी बात है, हम पर अभी जुल्म नहीं हुआ पाकिस्तान में, और खुदा करे कि हम इसी तरह से सुकून में रहें। पाकिस्तान में अभी तक कलीसिया पे वो जुल्म नहीं हुआ जो पहली सदी ईस्वी में रोम ने किया है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और अगर ऐसा हो तो अपने आप से सोचें, क्या इफिसस की कलीसिया की तरह यीशु मसीह कहेगा शाबाश तू मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं? काश के यीशु मसीह हमारी तारीफ करे और कहे शाबाश तू थका नहीं है मुसीबत उठाते उठाते। आप अपने बारे में सोचिए, आप कलीसिया हैं, मसीह का बदन है, कलीसिया जो मसीह का बदन है, सब्र करते करते थका नहीं। और आगे लिखा है कि उसकी और अच्छी रिपोर्ट यीशु मसीह पेश करता है, लेकिन आगे जाके वो कहता है मुझे तुझसे एक शिकायत है। हेलो कलीसिया चर्च, सुनिए, आप खुश हुए कि मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई इफिसस की कलीसिया के बारे में। आपने भी बड़ी अच्छी बातें हैं, आपने भी बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या इफिसस की कलीसिया की तरह आप काम करते हैं, मुशक्कत करते हैं, रूहें बचाते हैं, यीशु मसीह के इरशाद आज़म को की तकबीर करते हैं, रूहों को मसीह के पास लेके आते हैं? अगर नहीं आते तो इफिसस की कलीसिया का पैगाम आपको देना चाहता हूं, वो ये है कि देख तू कहां से गिरा है। यीशु कहता है मुझे तुझसे शिकायत है, देख तू कहां से गिरा है। जरा भाग्यदन की तरफ लेके चलूं आपको। जब आदम और हवा बागेदन में खुदा के साथ रहते थे, खुदा के साथ, और खुदा ठंडे वक्त में आके उनसे बातें करता था और वो खुदा की रिफाकत से महसूस होते थे, खुश होते थे, और आदम और हवा खुदा की रिफाकत में, फेलोशिप में एंजॉय करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ? शैतान आया और शैतान ने बरगलाया, हवा ने गुनाह किया, आदम ने गुनाह किया और उनको बागेदन से निकाल दिया गया। और अभी निकालने से पहले जब उन्होंने गुनाह किया तो उन्होंने अपने आप को छिपाया अंजीर के पत्तों से। ये आपको कहानी याद है, उन्होंने छिपाया। उनका ख्याल था कि शायद गुनाह छुप जाता है, गुनाह छुपता नहीं है। और फिर ये फूल पत्ते और ये जो झाड़ियां हैं, अगर उसके साथ उनको उठाते हैं भी तो सूरज की शुआएं उन्हें जला के रख देती हैं। खुदा से आप गुनाह को छुपा नहीं सकते। फिर एक आवाज आई, किसकी आवाज आई? खुदा की आवाज आई, ए आदम तू कहां है? मुझे बताइए, क्या खुदा को पता नहीं था कि आदम कहां है? बोलिए, पता था कि इसने गुनाह किया है, ये अपने आप को छुपा रहा है, दरख्तों में छुपा लिया है, इसने अपने आप को पत्तों से की लुंगियां बना के छुपा लिया है। फिर भी कह रहे हैं आदम तू कहां है? इसका मतलब है तू किस मर्तबे में था, कहां जा गिरा है? तुझे मैंने कहां रखा था? तू मेरे साथ मेरी रिफाकत में रहता था और मेरा इंतजार करता था, ठंडे वक्त में मुझसे गुफ्तगू करता था, मेरे से रिफाकत करता था। आज कहां है तेरी वो हालत? तू कहां
मैं आपसे कहना चाहता हूं, हेलो, अपनी निजात के दिन को याद करें जिस दिन आपने तौबा की, आपने निजात पाई। आज क्या हाल है? मैं जब दुआएं सुनता हूं, कई लोग कहते हैं बड़ा शुक्र सी कि खुदा का, बड़ा मजा आता सी, बहुत दुआ मैं करता था, मैं बड़ा बाइबल पढ़ा करता था, मैं रूहें बचाया करता था, कहते बड़ा खुदा का शुक्र था, मैं ऐसा था। आज का बताएं, आज कहां है? कहां से गिरे हैं? ये ऐसे ही है जैसे वो एक सामने की मिसाल में एक आदमी यरूशलेम से निकला और यरू की तरफ जा रहा था, तो डाकू में गिर गया। जब यरूशलेम से यरू की तरफ जाएंगे तो डाकू में गिरेंगे ही, और क्या होगा? जब यरूशलेम से यरू की तरफ जाएंगे, जब मसीह को छोड़ेंगे, कलीसिया को छोड़ेंगे, अपनी असली हालत जो मोहब्बत की हालत है, खुदा के साथ रफाकत है, उसको तर्क करेंगे तो डाकू में गिरेंगे, और क्या होगा? देख तू कहां से गिरा है। और बागेदर में एक दरख्त था, आपको याद है, जिसके खाने से मना किया था। किस को मालूम है? मना किया था, है ना? तो मैं आपको बताऊंगा, उस दरख्त के खाने से मना किया था, लेकिन कलीसिया को जब यीशु मसीह ये कह रहा है, देख तू कहां से गिरा है, तू जो मेरी रफाकत में रहता था, तू कहां से गिरा है? बागेदर में तो तुझे उस दरख्त के खाने से रोक दिया गया था, लेकिन अगर तू तौबा करके वापस आए, अब आप कहेंगे हमने तो तौबा की है। कलीसिया कौन होती है जी? तौबाशुदा लोगों का गिरोह। आप कहेंगे मैंने तो तौबा की है, लेकिन इफिसस की कलीसिया भी तौबाशुदा थी, और यीशु मसीह कहता है तौबा करके फिर पहले की तरह बहाल हो जा। इसका मतलब है अगर एक ईमानदार जो कलीसिया का मेंबर है, अगर वो गुनाह करे, उसको भी तौबा की दोबारा वापस आने की जरूरत है, बहाने की जरूरत है, वरना वो गिरा जाएगा और पाताल में चला जाएगा। देख तू कहां से गिरा है, देख तू कहां से गिरा है, अपनी हालत में देखें। आप आज भी रूहें बचाते हैं। मैंने कई लोगों से सुना, जब वो कहते हैं जब मुझे रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ, मैं कई दिन तक खैरसुबान बोलता रहा, और फिर लोग खातमों ने मुझसे मेरी मदद की। और कई लोग कहते हैं कि जब मैं नई तौबा की, इतना जोश था, मैं लोगों के घरों में जाता था, दरवाजे खटखटाता था और कहता था यीशु को कबूल कर लो। इतना जोश था, मैं बीमारों पे हाथ रखता था, बीमार अच्छे हो गए। आज क्या हाल है? आज कहां है? तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। इफिसस की कलीसिया से यही तो शिकायत है। देखिए क्या शिकायत है, मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूं। दूसरा मुकाशवा 5वीं आयत, बहुत सी खूबियों के बाद 4थी आयत, मगर, लेकिन, बट, काश कि आपको ये ना सुनना पड़े लेकिन। अब है तो अच्छे, लेकिन, काश कि आपको लेकिन ना सुनना पड़े। अब है तो अच्छे, लेकिन, ये लेकिन ना सुनना पड़े। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मियां बीवी जब पहले दिन दूल्हा दुल्हन शादी होती है, कैसे मजे से हाथ पकड़ के चलते हैं, कितनी मोहब्बत होती है। और उसके बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया, फिर खामद आगे आगे, बीवी पीछे पीछे। और गांव में तो मैंने खास तौर से देखा है कि वो उनको खामदों को शर्म महसूस होती है कि उनकी बीवी उनके साथ चले। वो सोचते हैं कि बीवी मेरे मुकाबले में मेरे साथ चलती है। उस दिन कहां थे जब जिस दिन पादरी साहब के सामने इकरार किया था, मरने तक साथ दूंगा, हम इकट्ठे रहेंगे, उस दिन कहां थे? पहली सी मोहब्बत, पहली सी मोहब्बत। जैसे पास्टर के सामने, गवाहों के सामने हाथ में हाथ पकड़ के बाहर निकले थे, सारी उम्र अपनी बीवी और अपने शोहर के साथ दोनों को ऐसे ही करना है। तो फिर जैसे खामन और बीवी अपने पहले म्यार से गिर जाते हैं, ऐसे ही खुदा को, यीशु मसीह को इफिसस की कलीसिया से शिकायत है, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, पहली सी मोहब्बत। मोहब्बत के बारे में बाइबल में लिखा है, मरकस की इंजील में, खुदा यीशु मसीह से किसी ने पूछा सबसे बड़ा हुक्म क्या है, और जब बताया गया तो यीशु ने कहा तूने ठीक बताया है, सबसे बड़ा हुक्म ये है। सुनने क्या है? आपको अगर याद है मेरे साथ मिल जाए। सबसे बड़ा हुक्म, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद, अपने खुदा से मोहब्बत कर। अपने सारे दिल से खुदावंद से मोहब्बत, सारे दिल से। लोग आधे दिल से मोहब्बत करते हैं, आधे भी नहीं जी। दिल के एक छोटे से
ऐसे खुदा को, हाँ पहले तो ठीक थे, आज क्या हुआ? सारे दिल से मोहब्बत, सारे दिल से मोहब्बत। क्रिश्चियनिटी में परसेंटेज नहीं होती। अगर कोई कहे कि जी मैं 90% जो है वो खुदा के साथ हूं, 5% नहीं, जी नहीं। मैंने किसी से एक दिन सुना, वो कह रहे कि फलां शख्स जो है, किसी को उन्होंने नाम लिया, वो आधा क्रिश्चियन हो चुका है। और भाई आधा क्रिश्चियन कोई नहीं होता। क्रिश्चियन क्रिश्चियन है, मसीही मसीही है, क्रिस्चिया का मेंबर है, और 100% होना चाहिए। देख तू कहां से गिरा है, ये परसेंटेज डाउन क्यों हो गई? कहां से पहली सी मोहब्बत कहां गई? खुदा के साथ पहली मोहब्बत क्या है? सुन लीजिए, हर रोज दुआ, हर रोज दिन के पहर में उठ के, रातों को उठ के, और दिन के तमाम हिस्सों में दुआया हालत में रहना, खुदा के कलाम को पढ़ना, रिफाकत रखना, रोटी तोड़ना, प्रस्तिश करना, हमको सुना करना, कलीसिया के इज्तिमा में जमा होना, कलीसिया के साथ रिफाकत में आगे बढ़ना। सिर्फ बड़े दिन पे नहीं, सिर्फ बड़े दिन पे नहीं। कुछ लोग मसीही हैं सालाना क्रिश्चियन, कुछ मसीही हैं सालाना क्रिश्चियन, साल के बाद बड़े दिन में गिरजे जाते हैं। कुछ है महाना, महीने में एक इतवार, और कुछ एक और भी है इतवारी क्रिश्चियन। ये खतरनाक है, हाँ इतवारी क्रिश्चियन खतरनाक है। सालाना तो जो खैर है पता ही है ना कि वो तो गुनाह में है। इतवारी क्रिश्चियन का मतलब है 6 दिन खुदा से दूर, 6 दिन कोई वफाकत नहीं उसके साथ, कोई मोहब्बत नहीं, पहली सी मोहब्बत से गिरे हैं। 7वें दिन देख रस्म पूरी करने के लिए 7वां दिन मुकर्रर है, खुदा के घर में आके इबादत करनी। ये ज्यादा खतरनाक लोग हैं जो इतवारी क्रिश्चियन है। रोजाना के क्रिश्चियन, 24 आवर के क्रिश्चियन, 100% क्रिश्चियन हमें होना है। देख तू कहां से गिरा है, तौबा करके पहले की तरह बहाल हो जा। और फिर एक इनाम भी है इसके साथ। मैं अपना पैगाम आज का खत्म कर रहा हूं, इसके साथ एक इनाम भी है, इनाम, रिवॉर्ड। हेलो, इफ्सुस की कलीसिया के बारे में पैगाम अच्छा लग रहा है? जरा हाथ खड़ा करें जिनको इफ्सुस की कलीसिया के बारे में अच्छा लग रहा है। थैंक यू। इफ्सुस की कलीसिया मौजूदा तुर्की के शहर में, तुर्की के इलाके में थी, आज नहीं है। कहां गई? कहां चली गई? देखा, अगर तू तौबा ना करेगा, दोबारा अपनी पहली मोहब्बत के बाहर नहीं होगा, मैं तेरे चरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। इसका मतलब है अगर कलीसिया मसीह के साथ वफादार नहीं हुई, आज है कल खत्म हो जाएगी। मैं तेरे चरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। देख तू कहां से गिरा है, पहले की तरह तौबा करके बाहर हो जा। और अगर तू नहीं होगा तो तेरे चरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा, तेरा दीवा गुल कर देगा। ये मतलब है इसका, तेरी रोशनी जाती रहेगी। और जो लोग कहते हैं कि वंस सेव ऑलवेज सेव, ये गलत है। जो लोग कहते हैं एक दफा तौबा कर ली, निजात पा ली, मसीह पर ईमान ले आया और मैं हमेशा की जिंदगी के लिए आसमान पे चले जाऊंगा, जी नहीं। हमें हर रोज मसीह के साथ चलना है, हर रोज उसके साथ रिफाकत करनी है। आदम और हवा की तरह, जैसे वो बागेदन में खुदा उनसे रिफाकत करते थे, ऐसे पहली सी मोहब्बत में कायम रहना है। और अगर नहीं तो वो याद रखें, चराग खुल कर दिया जाएगा। उसके हाथ में वो कटर है, जैसे काहिन के हाथ में वो गुल का कतर कहते हैं, उसे गुल का तीरा, जिससे वो क्षमादान के ऊपर जो हिस्सा स्याह आ जाता है उसको काटते थे। खुदावंद के हाथ में वो गुल का तीरा है और वो कलीसिया को काट के रख देगा, उनको जो मसीह के साथ खालिस नहीं है। बस ख्याल कर तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह बहाल हो जा। और अगर नहीं करेगा तो तेरे चरागदान को गुल कर दिया जाएगा। और आज बताइए इफ्सुस कहां है? नामो निशान उसका मिट गया। लेकिन एक रिवॉर्ड भी है, अगर तौबा करके बहाल हो जाओ तो एक इनाम भी है। तो मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पैदाइश की किताब में
नेकी और बदी के दरख्त का जिक्र है। ये मेरे बच्चों ने मुझे भेजा है। पैदाइश की किताब में ये उनको होली स्पिरिट ने बताया और मेरे पास पहुंच गया। पैदाइश की किताब में बाग एदन में नेकी और बदी के दरख्त का जिक्र है, जिसको ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, जिंदगी का दरख्त। और खुदा ने उनको बाग एदन से निकाल दिया ताकि ऐसा ना हो इन्होंने वो दरमियान वाले दरख्त का फल तो खा लिया, कहीं जिंदगी के दरख्त को ना खा लें। हेलो, सुनिए, खुदा ने आदम और हवा को निकाल दिया बाग एदन से। क्यों? एक तो गुनाह किया, कौन सा? वो जो दरमियान में दरख्त था ममनुआ, उसको खा लिया। आप कहीं ट्री ऑफ लाइफ में से ना खा ले, जो जिंदगी का दरख्त है उसको ना खा ले, इसलिए उनको बाग एदन से बाहर निकाल दिया। ये सजा दी, उनको सजा दी है, लेकिन कलीसिया को क्या रिवॉर्ड मिलता है? सुनिए, यही बरकतें आपको मैं बताने वाला हूं। 7वीं आयत, 6वीं आयत, अलबत्ता चले 7वीं आयत, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए तमाम हालात में अपनी पहली मोहब्बत में वापस आ जाए, तौबा करके वापस उसी मकाम पे आ जाए जहां से शुरू किया था, वही पहला स्टेज ए से शुरू करके जेड तक पहुंचने के लिए दरमियान में वापस आ गए थे। जो वापस आएंगे गालिब आएंगे, जो गालिब आएंगे, लिखा है मैं उसे उस जिंदगी की दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। तालियां बजाइए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। बाग एदन में हमें निकाल दिया गया, खुदा ने बाग एदन से हमें निकाल दिया ताकि कहीं जिंदगी का दरख्त ना खा लें, जिंदगी के दरख्त में से ना खा लें। लेकिन याद रखें, लिखा है खुदा ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी के दरख्त में से खा के ये हमेशा जिंदा रहे, लिहाजा बाग एदन से निकाल दिया। सुन लीजिए, अगर कलीसिया फरमाबरदार रहे, अगर ईमानदार फरमाबरदार रहे, अगर ईमानदार अपनी पुरानी मोहब्बत पे पहली मोहब्बत में बहाल हो जाए, गालिब आए, तौबा करके पहले की तरह काम करें, तो जब यीशु मसीह आएगा खुदा के फिरदौस में उसी जिंदगी के दरख्त में से हमें खाने को मिलेगा जिससे हमें इंतजार किया गया था, जिसको हमने नसीब चाहा था। खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये जिंदगी के दरख्त को खा ले। आज वो जिंदगी का दरख्त खाना चाहते हैं, जिंदगी के दरख्त में से खाना चाहते हैं, यीशु मसीह के पास आइए और वादा करें, ऐ खुदा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा, तरक्की करूंगा। और यीशु मसीह कलीसिया की तरह जो पैगाम तूने दिया, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। ऐ खुदा मैं सुनता हूं, और कई लोग सुनते 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 सुन हो जाते हैं और सुनते हुए भी अमल नहीं करते, गोया सुनी अनसुनी कर देते हैं। लिखा है अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो, अपने दिलों को सख्त ना करो। आज अगर उसके दिल अपने दिलों को सख्त कर लिया तो फिर गिरे रहेंगे। देख तू कहां से गिरा है, वापस बहाली के लिए वापस आ और अपने आप को उस मर्तबे पे ले गया जहां से गिरा था। और जब गालिब आएगा जिंदगी के दरख्त में से, और फिर हमेशा जिंदा। हालेलुया। फिर मौजा ही मौजा। क्यों जी? फिर जिंदा हमेशा। यसूलिया का जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए, इसका क्या मतलब है? अपनी जिंदगी कभी नहीं मरेगा। नेवर डाई, ही विल नेवर डाई। मौत को ना देखेगा क्योंकि जिंदगी के दरख्त में से उसे मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। इस उसकी कलीसिया के बारे में पैगाम मैं दोबारा दूंगा और आप और नई बातें सीखेंगे। खुदा आपके साथ हो, लेकिन मेरे साथ एक गीत गाइए छोटा सा। थैंक यू।